ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید کی جو لگ بھگ بہت سی قسمیں میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. چیپٹر وائز چیپٹر ہی پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, ایک ایک ٹاپک پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو توحید اس قدر سمجھ میں آ جائے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ بھول نہ پائیں. اور یاد رکھیے اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے وہ توحید ہی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش, وہ سب اسی کام کے لیے آئے تھے, توحید کے لیے ہی آئے تھے. انہوں نے توحید ہی پہنچایا دوسروں تک. سب نے ایک ہی بات کہی, لا الہ الا اللہ. جادو کا بیان پچھلے کلاس میں نے لیا تھا آپ لوگوں کا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو. آج جادو کی چند اقسام یعنی چند قسمیں جو ہیں وہ جانیں گے. آپ چاہیں تو اس طریقے سے لکھ لیں جادو کی چند اقسام, یا چاہیں تو لکھ لیں جادو کی چند قسمیں. Some types of magic, different type of magic. چیپٹر 25واں ہے, 25 کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں. جی سر. دیکھیے آج جو چیپٹر ہے وہ دراصل ہمارے روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کو بہت غور سے سنیے گا, بہت غور سے سننے کے بعد سمجھیے گا. اور اگر چند قسمیں ہمارے اندر اگر وہ پائی گئیں تو اس کو آج ابھی اسی وقت سے چھوڑ کے اللہ سے توبہ کیجیے گا اور اللہ کی طرف لوٹیے گا. چلیے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ محدثین تھے. محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں, وہ اوف رضی اللہ عنہ سے, وہ حیان بن علا سے, وہ قطان بن قدیسہ سے, اور وہ اپنے باپ قبیصہ سے, قدیسہ نہیں قبیصہ سے, کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, پرندوں کو اڑا کر پھال لینا. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, پرندوں کو اڑاتے ہیں. شاید اس ملک میں پتہ نہیں کہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, لیکن اور عرب کے ملک میں بھی جو ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پرندوں کو اڑا کے پھال لیا جاتا تھا کہ اگر وہ داہنے اڑا, کسی کام کا ارادہ کیا ان لوگوں نے, اور اگر پرندہ اڑاتے تھے ارادہ کر کے, اگر وہ داہنے اڑا تو کام صحیح, بائیں اڑا تو کام غلط, چھوڑ دیتے تھے, اس کام کو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ فعال ہے, پرندوں کو اڑا کر پھال لینا, زمین پر خطوط کھینچنا, یہ
علم رمل اس کو بولتے ہیں. یہودی کے قسمیں تھیں جو زمینوں پر لکیر کھینچ کے اور جو ہے نا کیا بولتے اس کو نجومی بننے کی کوشش کرتے تھے. وہ ان کا ایک علم تھا, یہ جادو سے ریلیٹڈ تھا. تو سن لیجئے, پرندوں کو اڑا کر پھال لینا, زمین پر خطوطیں کھینچنا یعنی علم رمل کرنا, اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی یا بدشگنی لینا. بدفالی اور بدشگنی کیا ہے؟ آج کوا چھت پر آیا ہے, ضرور کوئی مہمان آئے. آج فلاں شخص کا اٹھتے ہی میں نے منہ دیکھ لیا, ضرور کچھ برا ہوگا. یہ بدشگنی. تو بدفالی اور بدشگنی لینا, یہ سب جادو کی اقسام ہیں, یعنی یہ سب جادو کی قسمیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. سنن ابو داؤد کتاب القحانتی حدیث نمبر 3907 3907. دیکھیے اس چیز کو غور و فکر کیجئے. عموماً ہم بھی کیا کرتے ہیں, قرآن سے فال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں, فال نکال دیجئے, وہ فال نکالتا ہے. انڈا پہ فال نکالتے ہیں. ہمارا سامان چوری ہو گیا, ذرا انڈا پہ دیکھ لیجئے کس نے چوری کیا, اور وہ بدشگنی کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ چپکے سے آپ کا سامان, آپ کا سونا غائب کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اسی پھال کے بنیاد پر آپ کے دل میں یہ گندگی بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کی بھابھی یا آپ کی نند یا آپ کی ماں یا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی ریلیٹو اسی نے چرایا. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3907 3907. آج تھوڑی سی طبیعت میری ٹھیک ہے نہیں, اس لیے بہت کم آپ لوگوں کا کلاس لوں گا. مختصر کلاس ہی چلے گا آج آپ لوگ کا. ٹھیک ہے. جی سر. اب دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا, اس میں الیافہ کی بات آتی ہے. الیافہ مطلب پرندوں کو اڑا کر فال بد لینا. پرندہ اڑایا, داہنے گیا تو کام اچھا, کام کا ارادہ کیا اور پرندہ اڑا دیا. داہنے گیا, کام صحیح ہے. بائیں گیا, او اس کا مطلب یہ کام صحیح نہیں کرنا. اسی طریقے سے دور جہالت میں کفار لوگ تھے اور مشرکین بھی تیر سے فال لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی میں ہے الطرق. اس سے مراد ہے زمین پر کچھ لکیریں کھینچنا, خطوط کھینچنا. اب یہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے. علم رمل اس کو کہتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں, شیطانی چیخ و پکار اور آہ و بقا الجبت ہے. میں نے کل بول رہا ہوں, پچھلے کلاس میں جبت کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگ کو. کیا ہے جبت, کوئی بتائے گا؟ جبت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. کوئی ایک آدمی بھی بتا دے کیا ہے جبت. جادو. اچھا, اور کوئی؟ سر بتوں کو ماننے والے. اور کوئی؟ جبت جو ہے وہ طاغوت کو بھی کہتے ہیں, جادو کو بھی کہتے ہیں, ہے نا. زیادہ تر جو ہے یہ باطل اور جھوٹ پر جو شرک ہو اور جہالت ہو اس سے ریلیٹڈ ہے جبت. اوکے. جبت کا اصل معنی جو ہے علماء بتاتے ہیں کہ یہ جبت کا میننگ جو ہے وہ طاغوت ہے. چلیے,
ध्यान में रखिए ये सब अल्फाज। तो ये शैतानी चीखो पुकार और आहो बका अलजिब्त है। आप देखेंगे कई ऐसे गैर मुस्लिम के ममालिक में ऐसा पुकारा जाता है, हु हा हा ऊ ला 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 आ ला ला, यानी जबान को ये करके कई तरीके की आवाजें निकाली जाती हैं, शैतानी आवाजें निकाली जाती हैं, है ना, वो भी जिब्त है। सर जो वनवासी होते हैं वो लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं ना। वैसे भी आप ईरान के तरफ जाएंगे तो शादियों में और गमों में जो है बहुत तेज औरतें जो है खासतौर पर मुंह से आवाज निकालती हैं, ठीक है। तो ये भी उसी में है, सुनन अबू दाऊद में 3907 और 3908। ठीक है। उसी तरीके से इब्न हिब्बान ने अपनी सही में इसका शरीफ मरफू हिस्सा रिवायत किया है कि काला औफ से आगे की इबारत उन्होंने रिवायत नहीं की, ये सिर्फ मुस्नद अहमद में है। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इल्म नजूम यानी नजूमी होने का इल्म सीखा है ना, उसका कुछ भी हिस्सा अगर थोड़ा सा भी हिस्सा सीखा, उसने उसी कदर जादू सीखा जितना ज्यादा सीखता जाए। सुन लीजिए, अमूमन क्या है आजकल जो है अंडे पर, है ना, और साहिबा क्लास के बाद सारे सवाल कीजिएगा, है ना, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ उसको सुनिए बहुत से, ठीक है। और बाज लोग जो हैं वो किसी डिबिया पे चोर के बारे में बताते हैं, या घर में सामान गुम हो जाता है उसके बारे में बताते हैं, नजूमी बनने की कोशिश करते हैं। अगर वो सीखते हैं, वो एक कला है, वो सीखते भी हैं। आजकल देखेंगे कि आंखों में देख के और वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश, वो माइंड रीडिंग बोलते हैं उसको। आपने उसका नाम सुना है, बागेश्वर बाबा, जी सर। ना, तो वो यही करता है, माइंड रीडिंग करता है। बहरहाल, तो जिसने इल्म नजूम यानी नजूमी होने का इल्म का कुछ हिस्सा यानी थोड़ा सा भी हिस्सा अगर सीखा, तो गोया कि वो उसी उतना ही हकदार हुआ जितना वो ज्यादा सीखता जाए, ठीक है। तो उसने उसी कदर जादू सीखा जितना ज्यादा सीखता जाए, उतना ही ज्यादा उसकी वजह से गुनाह में इजाफा होता जाए। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 3905। तो आपके सामने मैंने 4 हदीसें पेश की हैं, 3905, 3907 और 3908, 3 हदीसें। क्लियर है? आगे देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिस शख्स ने गिरह बांध कर उस पर फूंक मारी है, आज क्या है, बुखार लगा है, गंडा बंधवा लो। गंडा बंधवाने के लिए क्या करते हैं, गिरह बांधते हैं और उसको फूंकते जाते हैं, गिरह बांधते जाते हैं, फूंकते जाते हैं, गिरह बांधते। ऐसा आज भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? आज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, आज भी हो रहा है। आप लोग जुबान जो है ना, फौरन चलना चाहिए इन सब बातों पे कि हाँ वाकई हो रहा है, फौरन जो है जुबान जो है मूव करना चाहिए। बहरहाल आप लोग बोलते नहीं है, अल्लाह जाने क्या ये है। चल, तो जादू कर जो यानी गंडा फूंक मारा और उसको गिरा लगाया, तहकीक उसने जादू किया। सुन लीजिए, गंडा बांधा, गिरा बांधकर, तो क्या किया उसने, जादू किया। और जो जादू करे वो शिर्क को मुर्तकिब हुआ, यानी जिसने भी जादू किया वो उसने शिर्क किया। और जो शख्स
अपने बाजू, गले, हाथ वगैरह पर कोई चीज बांधे या लटकाए, उसे उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। यानी आपने तावीज लटकाया, आपको लगता है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा, तावीज पहनूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उसी तावीज के हवाले कर देता है। जय। ठीक है। और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अलाज़ह के मुतालिक बताऊं कि वो क्या है? फिर खुद ही फरमाया, वो चुगली है जिससे लोगों में फितना और लड़ाई हो जाए। सही मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सीला हदीस नंबर 2606। 2606। दो हजार 606। क्या समझ में आया? चुगली ऐसा वही है जैसे मजनू एक बनकर फितना है, साइज कर दिया था मजनू का। और ये ऐसा फितना है, आप किसी की चुगली करके किसी से लड़ाई करोगे, आपको पता है कि बाप और बेटे में बन नहीं रही है, आप बाप के पास गए और आपने बोला, पता है आपका बेटा कह रहा था कि हमारा बाप जो है ना, वो ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमकाना है। बेटे के पास भी गए, या तक मेरा दोस्त कहाँ है? बाप तुम्हारा बोल रहा था कि मेरा बेटा नालायक है, निकम्मा है, काम नहीं करता है, हर वक्त जो है ऐसा वैसा, बहुत फालतू चीजें। आपको पता है कि बाप बेटे से नहीं पूछेगा, बेटा बाप से नहीं पूछेगा, आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी और दोनों में लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई ना भी हो, एक दरार जरूर पड़ जाएगा बाप बेटे के बीच में। और यहाँ सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं है, यहाँ भाई बहन की भी बात है ना, मियाँ बीवी की भी बात है, माँ बेटी की भी बात है, हत्ता कि पड़ोसी पड़ोसी की भी बात है, रिश्तेदार रिश्तेदार की भी बात है। अक्सर हम जाने अनजाने में ये काम कर बैठते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की मग़फ़िरत करे और हमें सही दीन पर चलने की तौफीक नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन। एक और हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज बयान में भी जादू का सा असर होता है, बाज बयान में भी जादू का सा असर होता है। बाज लोगों को क्या होता है, फसीला बलीग जो होता है, बलागत कलाम भी बाज औकात जादू का असर रखता है। मीठी मीठी बातें कर देना, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा देना। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5767, 5767, और मुस्नद अहमद हदीस नंबर 59, 63 और 94। हाँ सर, एक बार इंग्लिश में इसको बोल दीजिए, समझ में नहीं आया। सही बुखारी हदीस नंबर 5767 एंड मुस्नद अहमद बुक नंबर 2 हदीस नंबर 59, 63 and 94. These all are mentioned in same book, Musnad Ahmad. ठीक है। शुरू में मैंने आप लोगों को यफा और तर्क और तीरा सब जादू की किस्में मैंने आपको बताई कि तीर से भी, परिंदों से भी, है ना, जादू जो है फाल निकाला जाता था, और वो जादू की किस्में है। अब इन तीनों का मुकम्मल वजाहत जो है तफसीर के साथ मैंने आपके सामने बयान किया। उसी तरीके से इल्म नुजूम के बारे में भी मैंने बताया कि वो भी एक जादू का किस्म है, कि नजूमियत सीखना, नजूमी बनना। अक्सर लोग पाम रीडिंग करते हैं। पाम रीडिंग पता है आप लोगों को?
पाम रीडिंग बोलते हैं हाथों की रेखा को पढ़ना, इसको बोलते हैं पाम रीडिंग। कोई भी बाबा आता है और उसको आप अपना हाथ बढ़ा देते हैं, बाबा जरा देखिए तो मेरे हाथ में क्या लिखा है, मेरे तकदीर में क्या लिखा है। ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, इससे बचना है। ठीक है। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि गिरह लगाना और गंडा लगाना और उस पर फूंक मारना भी जादू है। चुगली के बारे में भी मैंने बताया कि चुगली भी एक जादू का किस्म है। ठीक है। एक मिनट। एक मिनट। मुझे अभी टाइप कर दिए, खराब हो जाती है। मुझे अभी टाइप कर दिए, अभी टाइप कर दिए। मुझे अभी टाइप कर दीजिए, कर दिए। अब बताओ 39 7 ठीक, 7 आगे चाहते हैं। एक और मैंने आप लोगों को बताया था आखिरी में जो हदीस मैंने आप लोगों को बताया कि बाज बयान में भी जादू का असर होता है। ये बाज बयान जो होता है वो फसील व बलीग होता है, बहुत खूबसूरत बात कहना, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना। जैसे किसी शायर जो है, शायर क्या करता है, शेर व शायरी करता है और बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के करता है ना। जैसे वो शेर है ना, अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। गाना है ये, है ना। उसी तरीके से ये है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना या रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। कितना बढ़ा चढ़ा के बात की गई है और ये शिर्क की तरफ ले जाया गया। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। समझ में आया? जी सर। अक्सर हमारे जुबान पे ये इस तरीके के कलाम आ जाते हैं, जुबान पे गुनगुना देते हैं, गा देते हैं और यहीं से नुकसान हो जाता है।